Assalamu alaikum students, hoping that you will be fine by the grace of Allah, will be safe and doing good at home. Students, welcome to all of you in my class, and today we will start unit number 6 and it is television versus newspaper, यानी television व मुकाबला अखबारात. Students, before starting the lesson, I want to give the introduction of this chapter. In this chapter we will study about television and newspaper. As we know that in the past the facilities were very rare, and to know the fact about any event we had to travel on foot, and in the past there was no concept of news, but with the passage of time man invented different things or different ways to know the fact in few moments. Students, when media started the work, it was print media, which includes newspaper, magazines, books, etc. With the passage of time, when science began to progress and print media changed into electronic media. Students, we will start the chapter with reading. So let's start paragraph number 1. News coverage over television is different from reading newspaper. Newspapers were primarily established to cover the news, and later on they added entertainment. On the other side, television was mainly invented for entertainment, and then it became an effective news medium. Now television news has become a powerful rival to newspaper. Though both of these mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. Explanation देखते हैं इसकी. News coverage over television is different from reading newspaper. टेलीविजन पर खबरों की इशाअत अखबारें पढ़ने से या अखबारात पढ़ने से बहुत मुख्तलिफ है. न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरली एस्टैब्लिश्ड टू कवर द न्यूज़ एंड लेटर ऑन दे एडेड एंटरटेनमेंट. शुरू में अखबारात का आगाज खबरों की इशाअत के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इसमें तफरी को भी शामिल कर लिया गया, यानी इंटरटेनमेंट पेजेस शामिल होना शुरू हो गए. ऑन द अदर साइड, टेलीविजन वॉज मेनली इन्वेंटेड फॉर एंटरटेनमेंट एंड देन It became an effective news medium. जबकि दूसरी तरफ टेलीविजन बुनियादी तौर पर तफरी के लिए इजाद हुआ था और फिर यह खबरों का एक मौसर जरिया बन गया. Now television news has become a powerful rival to newspaper. अब टेलीविजन और खबरें अखबारात का ताकतवर हरीफ बन गई हैं या हिस्सा बन गई हैं. Though both of these mediums cover the news effectively, there are distinct differences in the way do it. Distinct differences नुमाया फर्क. अगरचे ये दोनों जराए मौसर तौर पर खबरें देते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में वाज़िया फर्क पाया जाता है. Students, this paragraph tells us about newspaper, that newspapers were for giving news in initial steps, but later entertainment pages began to add. And on contrary side, the purpose of television was to entertain the people, but it has become the effective way of news. Students, we have paragraph number 2. Newspaper do not require us to sit at a place and read the news. Busy people may read the newspapers any time of the day. They may read the news that is important to them early in the morning and carry the paper with them to read in the bus or van. They may also choose to omit certain aspects of the news that they are not interested in. Let's see the explanation of this paragraph. Newspaper do not require us to sit at a place and read the news. अखबारात हमसे ये तकाजा नहीं करती कि हम एक जगह बैठें और खबरें पढ़ें. Busy people may read the newspapers any time of the day. मसरूफ लोग दिन को किसी भी वक्त अखबारात पढ़ सकते हैं. They may read the news that is important to them early in the morning. जो खबर उनके लिए अहम है वो सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं. And carry the paper with them to read in the bus or van. या फिर बस और वैन में पढ़ने के लिए अखबार साथ ले जा सकते हैं. They may also choose to omit certain aspects of the news. Certain aspects कोई मखसूस हिस्सा टू ओमिट छोड़ सकते हैं. ऑफ द न्यूज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन. वो अखबारात के बाज हिस्से जिनमें दिलचस्पी नहीं रख सकते या दिलचस्पी नहीं रखते, उस हिस्से को वो छोड़ सकते हैं.
Students, the good point of newspaper is that we don't have need to sit at any proper place to read them, and we can read newspaper whenever, wherever we like. Students, we have a question in the side box related to paragraph number 2. What is one good thing about newspaper? अखबारात के बारे में आप एक अच्छा पॉइंट बताएं, एक अच्छी चीज बताएं. The one good thing about newspaper is that you can read them at any time and at any place. आप इसको या अखबारात को किसी भी वक्त किसी भी जगह पढ़ सकते हैं. Students, next we have paragraph number 3. Television on the other hand require its viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. If they are busy people, they will miss the news. They cannot choose to read it on their move or throughout the day. They cannot even choose which piece of news which they wish to skip. One way could be to record it and watch it later, but the point here is that it is not that convenient. Let's see the translation of this paragraph. Television, on the other hand, require its viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. दूसरी तरफ यानी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पैराग्राफ नंबर 2 में क्या पढ़ा था कि अखबारात के बारे में पढ़ा था कि अखबारात जो है वो अपने पढ़ने वाले से ये तकाजा नहीं करती कि किसी एक जगह बैठें या किसी एक टाइम में बैठें. लेकिन दूसरी तरफ टेलीविजन को जब हम देखते हैं तो क्या है कि टेलीविजन अपने नाजरीन से ये तकाजा करता है कि खबरें देखने और सुनने के लिए किसी खास जगह खास वक्त पर मौजूद हों. इफ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज, तो वो खबरें मिस कर देंगे या छोड़ देंगे. दे कैन नॉट चूज टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे. वो इन्हें चलते फिरते या दिन भर सुनने का इंतखाब नहीं कर सकते. दे कैन नॉट इवन चूज विच पीस ऑफ न्यूज दे विश टू स्किप. वो इस बात का भी इंतखाब नहीं कर सकते या इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो किसी एक ऐसे हिस्से को छोड़ दें जिसको वो पसंद नहीं करते या जो वो छोड़ना चाहते हैं. वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर. इसका एक तरीका ये हो सकता है कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में देख लिया जाए. बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट. लेकिन असल बात यह है कि ये भी इतना आसान नहीं है कि हम न्यूज को या कोई भी टीवी शो है उसको हम रिकॉर्ड करें और उसको बाद में देखें. स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ वी आर टोल्ड अबाउट मेन पॉइंट्स ऑफ टेलीविजन. And to watch TV we have to sit at proper place. If we do not sit at proper time, we will miss the news. Even we cannot skip the points we don't like. Students, let's see paragraph number 4. Television brings laziness in us. We can view the news with a little or no effort. Since it is practically a form of entertainment, if we have the leisure time, we can view the television news any time of the day. Any time of the day and night, it broadcasts the news as it is happening. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news. On television, because everything is visual and auditory, a person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. In comparison, the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. Explanation की तरफ आते हैं. Television brings laziness in us. टेलीविजन हमें सुस्ती पैदा करता है या टेलीविजन हमें सुस्त बनाता है. We can view the news with a little or no effort since it is practically a form of entertainment. हम मामूली कोशिश या बगैर किसी कोशिश के खबरें सुन और देख सकते हैं क्योंकि ये अमली तौर पर तफरी की एक जो है वो किस्म है या तफरी का एक जरिया है. इफ वी हैव द लेयर टाइम, अगर हमारे पास फारिग वक्त है या अगर हमें फुर्सत है, वी कैन व्यू द टेलीविजन न्यूज एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट, तो हम दिन या रात के किसी भी पहर या किसी भी वक्त में खबरें सुन सकते हैं. इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज एज इट इज हैपनिंग, या कोई वाकया वकू पजीर हो रहा हो तो टेलीविजन इसको नशर करता है. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज ऑन टेलीविजन बिकॉज एवरीथिंग इज विजुअल. विजुअल कहते हैं देखने, एंड ऑडिटरी और सुनने, बसरी और समई.
ऐसा शख्स जो टेलीविजन पर खबरें देखने को तरजीह देता है उसके लिए जुबान में ज्यादा महारत रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बात में देखने और सुनने की सहूलत मौजूद है। A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. ऐसा शख्स जो नशरियाती जुबान के बारे में बुनियादी इल्म रखता है इसे देख सकता है और समझ सकने के काबिल होगा। In comparison, the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. Proficient, expert, माहिर। इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले को इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए जुबान में बेहतर माहिर होने की जरूरत है। Students, in this paragraph we are told about science, that in this era when science has progressed in every field and man has become lazy due to all facilities provided by science. In our spare time we watch TV with no effort, and you can say with little effort, and an uneducated person can listen or watch the news. But to read newspaper we must have knowledge and we must have to know how to read. Students, we have a question according to this paragraph. How does television makes us lazy? TV हमें कैसे सुस्त बनाता है? On television we can use with little or no effort. We sit at a place and just click a button and see every event in the world. In this way television makes us lazy. यानी टीवी पे खबरें सुनने और देखने के लिए हमें किसी खास कोशिश की जरूरत नहीं करनी पड़ती। हम एक जगह बैठते हैं, एक बटन क्लिक करते हैं और फिर जो दुनिया में होने वाले जितने भी इवेंट हैं हम देख सकते हैं। इस तरह टीवी ने हमें बहुत सुस्त बना दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ नंबर 5। Although television can give us the most updated news and visuals, newspapers can give us more in-depth coverage. Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant. Students, explanation देखते हैं इसकी। Although television can give us the most updated news and visuals, newspapers can give us more depth in coverage. स्टूडेंट्स, अगरचे टेलीविजन हमें ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर पेश कर सकता है और अखबारात हमें ज़्यादा तफसीली खबरें दे सकती हैं। यानी इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन हुआ है कि जो टेलीविजन है हमें ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर पेश करता है, जबकि अखबारात पर हमें ज़्यादा डिटेल बताई जाती है। एडिटोरियल एंड कॉलम राइटर्स कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज एंड एनालिसिस। एक्सपर्ट व्यूज जो उनके माहिराना नजरियात होते हैं, एनालिसिस और तज्जिया, दैट वी कैन गेट डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड देम। अदारिये और कालम नवीस हमें अपने माहिराना ख्यालात और तजर्बे दे सकते हैं जिन्हें हम पढ़ने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं। मैनी पीपल ऑल्सो ऑप्ट टू मतलब मुंतहिब करना, ऑप्ट टू रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर अ डे so as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. कुछ लोग एक दिन में एक से ज्यादा अखबारात पढ़ते हैं क्योंकि वो किसी भी बयान के बारे में मुख्तलिफ आरा हासिल करना चाहते हैं और ताकि वो इसकी सदाकत को परख सकें या इसकी हकीकत को देख सकें। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन में एक से ज्यादा अखबारात क्यों पढ़ते हैं, ताकि वो मतलब मुख्तलिफ लोग उस पर मुख्तलिफ राय जो देते हैं उसको जानना चाहते हैं। रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस। और पढ़ने वाले यानी कारीन फोरम के सफात के लिए लिखकर मज़ामीन के बारे में भी राय दे सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन न्यूज डू नॉट हैव दिस लग्जरी मीन आसाइश एज द न्यूज फ्लाइज टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट। टेलीविजन के नाजरीन को ये सहूलत हासिल नहीं होती क्योंकि खबरें इस कदर तेजी से गुजर जाती हैं कि कोई भी मौजू या कोई भी ऐसी राय नहीं लिखी जा सकती।
Students, in this paragraph, there is a comparison between television and newspaper. That this comparison describes that newspapers can be read slowly and understand, and sometimes we give our feedback after understanding it. But the news on television are so fast that we sometimes cannot understand to give our feedback. Students, before going to next paragraph, we have a question. Have you ever given your views on any article? क्या आपने कभी किसी भी अखबार में या आर्टिकल में अपने नजरियात पेश किए? अगर आपने किए हैं तो यू कैन आंसर इन यस, अगर नहीं तो यू विल हैव टू आंसर इन नो. Students, next paragraph and last paragraph of this chapter. Each medium has strengths the other does not. Each makes use of strong points that the other lacks. Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. The ideal seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. Let's see explanation. Each medium has strengths that the other does not. हर एक जरिया अपने अंदर खूबियां रखता है जो दूसरा जरिया नहीं रखता. यानी जो खूबियां टेलीविजन में है वो न्यूज़पेपर में नहीं है, जो न्यूज़पेपर में है वो टेलीविजन में नहीं है. दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रोंग है, लेकिन हर एक जरिया जो अपने अंदर खूबियां रखता है वो दूसरा नहीं रखता. ईच मेक्स यूज ऑफ स्ट्रोंग पॉइंट्स दैट द अदर लैक्स. हर एक में ऐसी बातें हैं जो दूसरे में नहीं है, या ऐसे मजबूत पॉइंट्स हैं जो दूसरे में नहीं है. टेलीविजन न्यूज इज लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. टीवी पर खबरें फास्ट फूड खाने के मुतरादिफ है, जबकि अखबारात पढ़ना या अखबारात पर खबरें पढ़ना बारी बारी 10 किस्म के खाने के मुतरादिफ है. The ideal seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. ये बात अच्छी दिखाई देती है, ये बात बेहतर होगी कि अगर किसी के पास वक्त है तो वो अखबारात भी पढ़े और टेलीविजन पर खबरें देखे भी. Students, in this paragraph we are told about to read newspaper. That read newspaper is like to eat 10 different kinds of dishes slowly and to understand it. And to watch TV is like to eat fast food. The writer used simile in this paragraph to make the concept clear. Students, क्वेश्चन है हमारे पास, which simile has the author used and why? जो राइटर है, जो मुसन्निफ है, उसने सिमिली क्यों इस्तेमाल की है और क्या सिमिली इस्तेमाल की है? तो द राइटर यूज्ड द सिमिली दैट टेलीविजन न्यूज इज लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. यानी टीवी पर खबरें फास्ट फूड खाने के मुतरादिफ हैं और अखबारात पर खबरें जो हैं वो बारी बारी 10 किस्म के खाने के मुतरादिफ है. और राइटर ने ये सिमिली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस्तेमाल की है, क्योंकि जब न्यूज़पेपर पर हम कोई भी खबर पढ़ते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात टीवी पर कोई खबर इतनी तेजी से गुजर जाती है जो हमें समझ आने में भी दुश्वारी पेश आती है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द ग्लॉसरी. ब्रॉडकास्ट, नशर करना, टू ट्रांसमिट अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन और रेडियो. कवरेज, नशरियात, द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस. डिस्टिंक्ट, नुमायां, अहम, खुसूसी, मार्क्ड. इंटरटेनमेंट, लुत्फानंदोज होना, परफॉर्मेंसेज दैट पीपल एंजॉय. लेयर, फुर्सत, फारिग वक्त, द स्टेट ऑफ हैविंग टाइम एट वंस ओन डिस्पोजल और यू कैन से स्पेयर टाइम. लग्जरी, आसाइश, डिलाइट, पुरसकून, पीसफुल. ओमिट, लीव समबडी और समथिंग आउट, कोई चीज छोड़ देना, स्किप आउट. प्रोफिशिएंट, वेरी स्किलफुल एट समथिंग, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से एक्सपर्ट. स्किप, छोड़ देना, एक चीज छोड़ के दूसरी चीज को शुरू करना, देखना या पढ़ना. नॉट डू समथिंग बट टू डू द नेक्स्ट थिंग इंस्टेड. Students, now I am going to sum up this chapter, and in this chapter we learned about the role of electronic and print media. We read that both are the major means of communication and both are playing important role in society. If electronic media brings awareness, print media also plays a vital role in this respect. So students, this was all about the chapter. I hope you got many points about electronic and print media.
Students, now we will have to solve the unit related question answers of this chapter. First of all, we will see question number 1. What is the one good thing about newspaper? अखबारात के बारे में एक अच्छा पॉइंट बताएं. The one good thing about newspaper is that you can read them at any place and at any time. अखबारात के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि आप उसको किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं और किसी भी जगह. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज टेलीविजन मेक अस लेजी? टीवी ने हमें कैसे सुस्त कर दिया? ऑन टेलीविजन वी कैन व्यू और लिसन न्यूज विद लिटिल और नो एफर्ट. वी सिट एट अ प्लेस एंड जस्ट क्लिक अ बटन एंड सी एवरी इवेंट इन द वर्ल्ड. इन दिस वे टेलीविजन मेक्स अस लेजी. हम क्या करते हैं, टीवी पे हमें जब कोई चीज देखनी होती है, कोई खबरें सुननी होती हैं, तो हम सिर्फ एक बटन दबाते हैं और पूरी दुनिया में होने वाले अहम वाकयात जो नशर हो रहे होते हैं वो देख लेते हैं. यही वजह है कि टीवी ने हमें जो है वो सुस्त कर दिया. क्वेश्चन नंबर 3. हैव यू एवर गिव योर व्यूज ऑन एनी आर्टिकल? क्या कभी भी आपने किसी आर्टिकल पर अपना कोई व्यू दिया? नो, आई हैव नेवर गिवन माई व्यूज ऑन एनी आर्टिकल. मैंने कभी आर्टिकल पे अपना कोई व्यू नहीं दिया. और अगर आपने दिया है तो यू कैन आंसर इन यस. विच सिमिली हैज द ऑथर यूज्ड एंड वाई? मुसन्निफ ने कौन सी तशबीह इस्तेमाल की और क्यों? The author used the following simile. Television's news is like having a fast food meal, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. मुसन्निफ ने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिमिली इस्तेमाल की कि टीवी पर खबरें देखना या सुनना फास्ट फूड खाने के मुतरादिफ है, जबकि अखबारात पर खबरें पढ़ना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 10 किस्म के खाने के मुतरादिफ है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है. हाउ इज अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज? अखबारात हमारे लिए खबरों का कैसे आरामदेह जरिया है? न्यूज़पेपर्स इज अ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज बिकॉज वी कैन स्टडी न्यूज़पेपर और रीड न्यूज़पेपर एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस. अखबारात हमारे लिए खबरों का एक मौसर या एक आरामदेह जरिया है क्योंकि हम जिस जगह चाहें या जिस वक्त चाहें खबरें पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वाचिंग टीवी न्यूज? एक टीवी पे खबरें सुनने या देखने वाला वो कैसे महदूद होकर रह जाता है? टेलीविजन रिक्वायर्स इट्स व्यूअर टू बी अ सर्टेन प्लेस एंड एट अ सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन द न्यूज. इफ अ व्यूअर हैज टू लीव हिज प्लेस ही गेट्स रिस्ट्रिक्टेड वॉचिंग टीवी न्यूज. टेलीविजन अपने नाजरीन से इस बात का तकाजा करता है कि किसी खास वक्त में किसी खास जगह बैठा जाए, और अगर वो अपनी जगह छोड़ते हैं तो फिर महदूद होकर रह जाते हैं, उन्हें वो पॉइंट भी मिस करना पड़ता है. इन व्हाट वे वॉचिंग न्यूज ऑन टेलीविजन इज इजियर देन रीडिंग न्यूज़पेपर? किस तरह जो है वो अखबारात से ज्यादा आसान है टीवी पे खबरें सुनना या देखना? वॉचिंग न्यूज ऑन टेलीविजन इज जस्ट लाइक टू हैव एन एंटरटेनमेंट. एवरीथिंग इज विजुअल्स एंड ऑडिटरी. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी. देयरफॉर व्यूइंग न्यूज ऑन टीवी इज इजियर देन रीडिंग अ न्यूज़पेपर. क्योंकि टेलीविजन पे खबरें देखने के लिए हमें किसी भी जुबान पे महारत हासिल करने की जरूरत नहीं होती. हर चीज वाज़ेह तौर पर दिखाई और सुनाई जाती है, इसलिए जो है टीवी पे खबरें देखना या सुनना अखबारात पढ़ने से ज्यादा आसान है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू न्यूज़पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज? अखबारात हमें कैसे ज्यादा तफसीली खबरें देती हैं या तफसीली नशरियात देती हैं? Newspapers give detailed news, they give expert views and analysis. They also print different views of common people. In this way, newspaper give us more in-depth coverage. अखबारात हमें मुख्तलिफ किस्म के माहिरीन के नजरियात देती हैं, हमें उनके तज्जियात देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि अखबारात जो है हमें बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास मीडिया के, उससे ज्यादा तफसीली खबरें देती हैं. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर्स? कुछ लोग एक से ज्यादा अखबारात क्यों पढ़ते हैं? दे रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट न्यूज एंड टू चेक फॉर इट्स वैलिडिटी. कुछ लोग एक से ज्यादा अखबारात इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो एक ही स्टोरी या किसी एक ही किस्से के बारे में मुख्तलिफ किस्म के हकायक या मुख्तलिफ किस्म की आरा जानना चाहते हैं और उसकी हकीकत को परखना चाहते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स? कारीन या अखबारात पढ़ने वाले अखबारात आर्टिकल्स पे कैसे अपनी राय दे सकते हैं? रीडर कैन गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस, यानी फोरम पेजेस पर लिखकर
या फोरम पेजेस के लिए लिखकर आर्टिकल्स पर अपनी राय दे सकते हैं। विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज, वाई? आप खबरों के किस जरिए को ज्यादा तरजीह देंगे और क्यों? ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ दैट द अदर डज नॉट। आई लाइक टू रीड न्यूज पेपर्स, आई ऑल्सो लाइक टू वॉच टेलीविजन। यानी हमारे पास अगर दो जराए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, अखबारात हैं, ये न्यूज़पेपर या टेलीविजन है, तो दोनों अपने अंदर ऐसी खूबियां रखते हैं जो दूसरा जरिया नहीं रखता। यानी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो टीवी में हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अखबारात में हैं, इसलिए मैं दोनों को पढ़ना तरजीह दूंगी।